नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, कानून निलंबन के सुझाव पर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की सफाई आई है। कहा, मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। कानूनों का निलंबन मेरी निजी राय नहीं, मेरा बयान पूरी तरह से किसानों के सुझावों पर आधारित था। मैं हर तरह से किसानों के साथ खड़ा हूं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्या कहा था वो भी आपको बता दें। कैप्टन ने कहा था कि किसान अगर आंदोलन खत्म करना चाहते हैं तो उन्हें बातचीत का रास्ता अपनाना होगा। कैप्टन ने हवाला दिया कि जिस तरह हर जंग को बातचीत से सुलझाया जा सकता है, उसी तरह किसानों का मसला भी सुलझाया जा सकता है। कानूनों पर 2 साल की रोक से सहमति बन सकती है, लेकिन जैसे विपक्षी दलों ने इस बयान को लेकर कैप्टन को घेरा, उसके बाद कैप्टन की तरफ से यह सफाई दी गई कि कहा गया कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। कानूनों का निलंबन मेरी निजी राय नहीं थी, मेरा बयान पूरी तरह से किसानों के सुझावों पर आधारित था। मैं हर तरह से किसानों के साथ खड़ा हूं। दूसरी ओर कैप्टन के इस बयान को लेकर राजनीति गरमाने लगी है। किसान नेताओं का कहना है कि ऐसी बयानबाजी से कैप्टन को बचना चाहिए, तो विरोधियों का कहना है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह केंद्र की भाषा बोल रहे हैं। तो ये गल कहने कि कैप्टन साहब का अपना विचार है, निजी विचार है उन्होंने। बाकी तो जो भी गल है वो ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਚ ਰਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੇਗੀ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਭੇਜੂਗੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਸੱਜੋ ਖੱਬੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਵਿਕਰਮ ਆਪਣਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਵਾ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਵਾਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह कराने तो बीजेपी की करोगी सर? ਅਰੇ ਭਾਈ बीजेपी का काम है ना। ਭੜਕਾਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ ਆਉਦਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਆ ਉਹੀ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾਗਾ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਾ ਲਓ, 2 ਸਾਲ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ, ਬਤੌਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਏਜੰਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਰਿਆਗਾ। ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆਗਾ। ਬਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵਿਰੋਧੀ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ रेड़का केंद्र सरकार ने पाया हुआ है। अगली बड़ी खबर, एक तरफ जहां मुख्यमंत्री के बयान पर बवाल मचा हुआ है, तो वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने शक्ति प्रदर्शन किया। बरनाला में किसानों और मजदूरों की महारैली हुई। रैली में हजारों की तादाद में लोग पहुंचे। बलबीर सिंह राजेवाल ने यहां संबोधित किया महारैली को और दिल्ली पुलिस के नोटिस का जवाब न देने के लिए लोगों से अपील की। अगर पुलिस गिरफ्तार करने आए तो घेराव करो, ये उनकी तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा पंजाब पुलिस दिल्ली पुलिस का सहयोग ना करे। महारैली की गई बरनाला में। किसानों मजदूरों की ये महारैली थी और इस महारैली में किसान नेताओं ने भी शिरकत की। रैली में हजारों की तादाद में लोग पहुंचे। इस मौके पर बलबीर सिंह राजेवाल ने संबोधित किया। कहा दिल्ली पुलिस के नोटिस का लोग जवाब ना दें, अगर पुलिस गिरफ्तार करने आए तो घेराव करो। पंजाब पुलिस दिल्ली पुलिस का सहयोग ना करे।
प्रतीक साडे कोल भेज सकते हो, भेज दो। किसी ने जाके पुलिस अगे पेश नहीं होना। और जे किते दिल्ली पुलिस वाले गलती कर लेंगे ने, तुहाडे कोल आके तुहानू गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं, उसे सारा पिंड का विरोध करो। और ना ही मैं कैप्टन सरकार नू स्पष्ट शब्द कह देना चाहना, एवं उपर प्रूफ करी जाओ कि अभी किसानों के हमदर्द हाँ। ये अभी तुहाडा भी इंसान है, पंजाब पुलिस दिल्ली पुलिस ने सहयोग ना करे, ये भी मैं साफ कह दे। देखो ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਨੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਟੈਂਟ ਵਗੈਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੱਖਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮੱਠੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। देखो कट्ठ किते भी होवे, पंजाब च होवे, हरियाणे च होवे, किते भी कट्ठ होवे, ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੱਲਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਇਕੱਠ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੈਣਾ। उधर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बीजेपी की बैठक में पीएम मोदी ने पार्टी नेताओं को नसीहत दी है। बयान बहादुर बनने से बचना चाहिए, उनकी तरफ से कहा गया। कहा कि कृषि कानूनों को लेकर जनता के बीच जाएं, तीनों कानूनों के फायदे क्या है उनका अधिक से अधिक प्रचार करने की जरूरत है। सरकार में रहने का मतलब ये नहीं कि आप जनता से दूर हो जाएं, किसी भी मुद्दे पर बयान देने से बचना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बीजेपी की बैठक में नेताओं को यह नसीहत दी गई कि बयान बहादुर बनने से आपको बचना चाहिए। जो कृषि कानून है उनको लेकर जनता के बीच आए, तीनों कानूनों के फायदे बताएं, अधिक से अधिक इस बारे में प्रचार करने की जरूरत है। सरकार में रहने का यह मतलब नहीं है कि आप जनता से दूर हो जाएं। उन्होंने कहा कि किसी भी मुद्दे पर बयान नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बीजेपी की बैठक में नेताओं को नसीहत दी गई। उन्होंने कहा कि आपको बयान बहादुर बनने से बचना चाहिए, क्योंकि 3 कृषि कानूनों को लेकर जब से किसान आंदोलन कर रहे हैं, कई बीजेपी नेताओं ने ऐसी बयानबाजी की जिसकी वजह से ये मसला और ज्यादा सरकार के खिलाफ गया। इसी को लेकर जब ये बैठक हुई तो प्रधानमंत्री ने उन्हें नसीहत दी। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, दसूहा में किसान के घर पहुंचे अकाली नेता सुखबीर बादल। कहा इस मामले पर जो किसान पिता पुत्र ने कर्ज से तंग आकर आत्महत्या की थी, उस परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करने के लिए पहुंचे थे और सुसाइड नोट में इन दोनों ने सरकार को कसूरवार ठहराया था। पीड़ित परिवार से अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने मुलाकात की। इस दुख की घड़ी में सुखबीर बादल ने परिवार के बीच पहुंचकर उनका दुख साझा किया। और आपको बता दें कि दसूहा में पिता पुत्र ने कर्ज से तंग आकर आत्महत्या की थी। सुसाइड नोट में उन्होंने सरकार को कसूरवार ठहराया था। खबर हरियाणा से, झज्जर के माता गेट मोहल्ले में रहने वाली एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक 28 साल की बबीता की विश्वपाल से 12 साल पहले शादी हुई थी। दोनों के 2 बच्चे भी हैं। विवाहिता के परिजनों ने मौत का जिम्मेदार ससुराल पक्ष को ठहरा है और पुलिस ने भी ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसके आधार पर ही आगे कार्रवाई होगी। ये एक बबीता लड़की है जिसकी शादी को 12-13 साल हो गए थे और फांसी लगा दी थी। इनके परिवार वालों ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था और जिसका हमने बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया है। और जैसे भी हमारे को मेडिकली जो भी रिपोर्ट मिलेगी, पीएमआर मिलेगी, उसके हिसाब से हम इसमें कार्रवाई करेंगे। परिवार वालों को यह था कि अरेस्ट है, तो हमने उनको समझाया है और जो भी इसमें लीगल कार्रवाई, जायज़ कार्रवाई। खबर हिमाचल से, मंडी के सराज में हुए दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की जान चली गई, जबकि 11 लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घायलों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। सराज में हादसा, पहाड़ से गिरी मौत, लीन ली 4 जिंदगियां।
मंडी की सराज घाटी में कलही गांव के पास जीप से गुजर रहे 4 लोगों के लिए शनिवार की शाम काल बन गई। चलती गाड़ी पर पहाड़ से मलबा आ गिरा। 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और एक अस्पताल में इलाज के दौरान जिंदगी की जंग हार गया। हादसे में 11 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, इसलिए उसे शिमला रेफर कर दिया गया है। अन्य घायलों का मंडी के सिविल अस्पताल में ही इलाज चल रहा है, जिनका हाल जानने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे। सब लोगों को जितना जल्दी रेस्क्यू करके जो है वो हॉस्पिटल पहुंचाया जा सकता था, उस तरह से प्रयत्न किया। डॉक्टर्स ने भी एकदम मुस्तैदी के साथ जहां जो उपचार करने की दृष्टि से जो चीज़ें थी वो तुरंत की हैं। 3 लोगों की मौके पर वहीं पर ही मृत्यु हुई। एक की यहाँ आज सुबह जल्दी जो है वो 5 बजे के लगभग मृत्यु हुई है। मुख्यमंत्री ने हादसे में मारे गए 4 लोगों के परिवार वालों को 4-4 लाख का मुआवजा और घायलों को मुफ्त इलाज देने का ऐलान किया है। जिनकी मृत्यु हुई है उनके लिए हम हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से 4-4 लाख रुपए उनके लिए मदद के रूप में उनके परिवार के लिए देंगे। और उसके अतिरिक्त जो घायल है उनके उपचार जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। और उसके अतिरिक्त और भी जो चीज़ें उनके लिए मदद करने की दृष्टि से होंगी, वो भी सारी चीज़ों को लेकर के जो है वो प्रशासन करेगा। जिस जगह हादसा हुआ वहां अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं, फिर भी ना जाने सबक क्यों नहीं लिया जाता। ये बात समझ से कोसों दूर है। मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज के साथ न्यूज़ 18 हिमाचल। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, शिमला के आईजीएमसी में आंगनबाड़ी वर्कर की मौत हुई है। 29 जनवरी को कोरोना का टीका इन्हें लगा था। 8 फरवरी को तबियत अचानक खराब हुई। शनिवार रात टांडा से आईजीएमसी रेफर किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के कारणों का पता चल पाएगा। ये आंगनबाड़ी वर्कर हमीरपुर की रहने वाली थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।